थैंक यू सो मच मैम। और अब मैं आग्रह करूंगा, इसके बाद एक एवी है जो आज के इस समारोह के लिए खास बनाई गई है महाराष्ट्र राज्य आयोग की ओर से, तो हम सभी उसके साक्षी होंगे। देखते हैं एवी प्लीज। On 25th January 1993, the government of Maharashtra established the Maharashtra State Women's Commission, a statutory body with civil code powers created to protect women's rights and secure justice. Today, under Chairperson Rupali Chakandar, the Commission continues to be the voice of the voiceless. In the 1990s, it fought dowry deaths and domestic violence. Today, new battles dominate: workplace harassment, cyber fraud, online exploitation, and human trafficking. Rupali Chakandar has taken the commission directly to people through Mahila Ayog Abhyagan, public hearings in every district where women who once hesitated to complain now receive justice at their doorsteps. During the Bali pilgrimage too, the commission has stood by lakhs of women Bharatians, providing resting shelters, safe water, hygienic toilets, sanitary pads, and counseling, ensuring dignity along the spiritual journey. The Commission has tackled one of the darkest crimes, human trafficking. With embassies and the Ministry of External Affairs, it rescued 24 women trapped abroad, including in Oman. Statewide campaigns and national consultations have been launched, linking Maharashtra to global anti-trafficking efforts. To strengthen this fight, the Commission has also set up a dedicated committee on human trafficking, which will recommend legal reforms to the state government. Domestic violence continues to shatter lives. The Commission runs legal aid cells, strengthens Saki one-stop centers and Bharosa cells, and provides trained counselors for survivors. Recognizing the need for deeper reforms, a special committee on domestic violence has been formed, tasked with advising the state on strengthening law. Workplace safety is another priority. Under the WASH Act, internal complaints committees are mandatory in offices. The Commission monitors these committees and trains members, ensuring women can work without fear of harassment. Awareness has been a constant weapon. Initiatives like Adi Shakti Puraskar and sanitary pad banks focus on the health and dignity of school girls. The Commission also led a silent revolution against oppressive widow rituals. Gram Panchayats, guided by the Commission, passed resolutions to end humiliating practices like erasing sindoor or breaking bangles, restoring dignity to widows. It has also fought to curb child marriages, which rose alarmingly post-COVID. Through vigilance, district meetings, and headlines, thousands of child marriages have been prevented. In fact, over 1.5 lakh cases have been addressed through its headline. In today's digital era, threats have moved online. To fight cyber fraud, trolling, sextortion, and deepfakes, the Commission launched Mission E-Suraksha with Meta, training students and women across Maharashtra in digital safety. This is the story of resilience, justice, and progress. The story of women who refuse to silence and of an institution that listens, supports, and acts. The Maharashtra State Women's Commission, 3 decades of justice, and the journey continues. जैसा कि हमने इस एवी में देखा, और राहटकर मैम जैसा हमेशा कहती है कि महिला आयोग क्या है, पहली प्रतिक्रिया किसी भी संकट की, और जब महिला किसी संकट में होती है तो उसकी पहली फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो होता है वो महिला आयोग होता है, चाहे वो राष्ट्रीय महिला आयोग हो, राज्य महिला आयोग हो। और मैं सभी महाराष्ट्र की जनता में जितनी भी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी ओर से कहना चाहूँगी कि हम रूपाली मैम की तरफ जब देखते हैं तो हमें पता है कि हम सुरक्षित हाथों में हैं और हमारी कोई आवाज़ है, तो उस आवाज़ का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आदरणीय रूपाली चाकणकर जी को मैं विनती करूँगी कि सभी के स्वागत में आप कुछ कहें। नमस्कार। महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवराय, छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने हमें संविधान दिया, स्त्री सम्मान दिया, घटना दी,
और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, राजमाता जिजाऊ माँ साहब, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, इन सबको मैं अभिवादन करती हूँ। आज हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग के 2 दिन के इस निर्णय क्षमता कार्यशाला में मौजूद हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से सहयोग हमारे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया, और देवेंद्र जी फडणवीस साहब, रामजी शिंदे, एडवोकेट राहुल जी नार्वेकर, श्रीमती नीलमताई गोरे, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से सहयोग इस प्रोग्राम के लिए किया, और हमारे महिला बाल विकास मंत्री आदिति ताई, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एक बार जोरदार तालियां बजा के हम ताई को धन्यवाद देंगे। ताई की वजह से एक कार्यक्रम सक्सेस हो रहा है। बाबा साहब जी पाटिल, संजय जी सौकरे, श्रीमती मेघना जी बोडीकर, पंकज जी बोहिर, जिनकी सहयोग की वजह से हम एक कार्यक्रम अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। और विजयाताई राहटकर, चित्राताई वाघ, मनीषाताई चौधरी, विद्याताई ठाकुर, यहाँ पे मौजूद हर एक राज्य से आए चेयरपर्सन, मैं सबकी तहे दिल से यहाँ से स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र में हमारी सरकार त्रिदेव की सरकार है, ब्रह्मा विष्णु महेश की सरकार है, और मुझे ऐसा लगता है इस ब्रह्मा विष्णु महेश की सरकार में हमारे देवेंद्र जी बहुत अच्छी तरह से हमें सहयोग कर रहे हैं। और इस सरकार में एक नन्ही सी लक्ष्मी है जो लाडली बहन की वजह से हर घर में खुशियाँ फैला रही है। इसीलिए आदिति ताई, आपका भी फिर से एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। इस सरकार में काम करते हुए आपने हमारे महिलाओं के लिए जो भी सशक्तिकरण, आत्मविश्वास के लिए, साहस के लिए जो भी प्रयास किया है, ये 2 दिन के कार्यशाला में हम इस देश के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आज के इस 2 दिन के कार्यशाला में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पांडिचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आए सभी प्रतिनिधि, देश भर से आए सभी तज्ञ, मैं सबका महाराष्ट्र की तरफ से स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में 2 दिन में हम क्या लेके जाएंगे? इस 2 दिन में हमने 4 साल में बहुत अच्छी तरह से काम राज्य महिला आयोग की तरफ से किया है। इसमें आईसी कमेटी होगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में प्रोग्राम हो गए, डीवी के बारे में हो गए, बहुत अच्छी तरह से पोर्टल सामने लाके ऑनलाइन कंप्लेंट हम महिलाएं कर सकती हैं। तो ये सब कुछ हर एक राज्य के चेयरपर्सन के साथ बांटते हुए उन्होंने भी बहुत अच्छा तरह से काम अपने अपने राज्यों में किया है, ये हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। अपनी प्रगति और अनुभव के देश के सामने प्रस्तुत करने का एक मौका हमें इस दौरान मिल रहा है। पिछले 3 दशकों से महाराष्ट्र में महिला आयोग महिलाओं के लिए बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा है, और मुझे विश्वास है कि देश भर हमारे साथी आयोग के साथ साझा करने में हम बहुत खुशी हो रही है। हम सब अलग अलग भाषा से आ रहे, अलग अलग राज्य से आ रहे, हमारी समस्या लेकिन एक जैसी है, हमारी चुनौतियाँ एक जैसी है। इसीलिए एक मंच पे आए और एक संवाद बढ़ाए। इस 2 दिन के कार्यशाला में हमने बहुत अच्छी तरह से गणमान्य व्यक्ति को यहाँ पे आमंत्रित किया है। इस 2 दिन में हम विवाह की अनुमति किस साल कौन सी होनी चाहिए, आईसी कमेटी के बारे में हम किस तरह से काम कर सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बढ़ती संख्या लगातार देखते हुए हैरान हो रहा है, इसीलिए इसके बारे में हमें काम करना है। और मुझे ऐसा लगता है बीएनएस होगा, भारतीय न्याय संहिता होगा, इसके जरिए जो नए कानून के ढांचे के तहत हमने समझाया है उसे हमें आमतौर पर महिलाओं के सामने लेके जाना है। महिलाओं के स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमें काम करना है। हमारी राज्य महिला आयोग जो काम कर रही है, इसमें जन सुनावनी हम अच्छी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में ले रहे हैं। जन सुनावनी के जरिए हर किसी को न्याय देने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे सवाल खत्म हो रहे क्या?
नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए हमें काम करना है। हमारे मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे बैठे हैं, हमारे मंत्रीगण यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। 30% से ज़्यादा वर्किंग वुमन हमारे महाराष्ट्र में काम करती है। हमारे यहाँ आईसी कमेटी काम तो करती है, लेकिन किसी कंपनी का, खाजगी कंपनी होती है, निमशासित कंपनी होती है, उनका जिस तरह से फायर ऑडिट होता है, जैसा उनका आर्थिक ऑडिट होता है, उसी तरह हमारे आईसी कमेटी का एक ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। और आईसी का जब ऑडिट होगा तभी हमारे 30% से ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा, उनके काम की जगह उनको मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है इसके लिए हमने आपके सरकार के पास सिफारिश की है। अदिति ताई का सहयोग हमें तो हमेशा इसके बारे में रहता है। ये सब करते हुए हमारा दामिनी पथक होगा, बीट मार्शल होगा, ये सब तो काम करते रहते। आज भी स्कूल की स्टूडेंट्स होगी, कॉलेज की स्टूडेंट्स होगी, कोई उसे तंग करता है तो उन्हें लगता है कि हमें शिकायत कहाँ करनी होगी। उनके लिए टोल फ्री नंबर तो रहता है, लेकिन टोल फ्री नंबर के आगे जाके काउंसलिंग करना बहुत जरूरी रहता है। आज भी हमारे समाज में काउंसलिंग की जरूरत बहुत है। हमारी चाइल्ड मैरिज की संख्या लगातार देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारे चांद्रयान तो यशस्वी हो गया, हमारा ऑपरेशन सिंदूर तो यशस्वी हो गया, हमारा संविधान सभा भी यशस्वी हो गया, फिर भी हमें आगे जाके बहुत कुछ काम करना हो और इसके लिए हमें सबको साथ आना है। इसीलिए इस मंच के माध्यम से हम सब एक साथ काम करें। आपकी जो भी सुझाव होगी वो एक साथ लेके अच्छी तरह से हमारे महाराष्ट्र में हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। यहाँ पे चाइल्ड मैरिज के लिए हमें काम करना होगा। चाइल्ड मैरिज के केसेस दिन भी बढ़ते जा रहे हैं, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में भी बहुत सारे केसेस बढ़ते रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब, मैं आपको बताना चाहूँगी, 4 दिन पहले की वसई की घटना है, जहाँ बांग्लादेशी महिलाओं की छुटकारा करते हुए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बहुत ही गहन बात है, जिसके बारे में हमें काम करना होगा। 14-15 साल की लड़की होगी, उनको पैर के जाल में फंसाया जाता है, बड़ी नौकरी दिखाने के आमिष दिखाई जाती है और उनको इस जाल में फंसा के दूसरे देशों में लेके जाता है। राज्य महिला आयोग ने ओमान होगा, मस्कत होगा, दुबई होगा, यहाँ से बहुत सारी महिलाओं को महाराष्ट्र में वापस लाया, लेकिन एक कोशिश कम पड़ रही है। इसीलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इनके साथ काम करते हुए आपका सहयोग हमें बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है इस 2 दिन के इस चर्चा सत्र में हम बहुत सारी विषय को लेके पहल करेंगे। इसमें रेलवे पुलिस हमारे साथ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोग हमारे साथ है, इनके साथ हम बहुत सारे विषय की चर्चा करते हुए जो भी निर्णय लेंगे वो महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छे तरह से रहेंगे। हाल ही में घरेलू हिंसा समिति और मानवी तस्करी निरोधक समिति का गठन किया है। विशेषकर मानवी तस्करी महाराष्ट्र की एक गंभीर समस्या है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में बचाई गई हर 3 महिलाओं में से 1 महाराष्ट्र से होती है। पुणे, नागपुर, पालघर, वसई और कल्याण में हाल ये अभियान यह दर्शाती है कि तस्करी का जाल कितना गहरा है। इसीलिए हमने रेस्क्यू में ऐसे ऐप और होटल, रेस्टोरेंट, उद्योगों की प्रशिक्षण देकर तस्करी की पहचान और रोकथाम की दिशा में कदम बढ़ाया है। आयोग ने ओमान में बहुत अच्छा तरह से काम किया है, महाराष्ट्र में काम करना पड़ रहा है। एक सबको साथ आके ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आईसी और डीवी के बारे में, चाइल्ड मैरिज के बारे में हमें काम करना है। कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए हमने पॉश कानून के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया है। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी रणनीतियाँ तैयार की गई। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, वित्तीय सशक्तिकरण, कौशल्य प्रशिक्षण, महिला सुरक्षा और मानवीय तस्करण उन्मूलन की दिशा में हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग का ये संदेश है, हर महिला की गरिमा हमारी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी निभाने के लिए मुख्यमंत्री साहब, सहारे का किनारा मांगने हम आपके पास आए थे। हौसले का तूफान आपने हमें दिया है और इस हौसले के तूफान को साथ में लेके हम आगे जाएंगे। ये 2 दिन के कार्य क्षेत्र में और इस कार्यशाला में हम बहुत अच्छी तरह से योजनाएं, निर्णय क्षमता लेंगे और यही से मैं कहना चाहूँगी, हर अपराधी, तस्कर और शोषक को मैं चेतावनी देती हूँ कि अब आपका समय समाप्त होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र शून्य सहिष्णुता के नीति पर कार्य करेगा, क्योंकि हमारे साथ देवेंद्र जी है।
महाराष्ट्र के महिलाओं की सुरक्षा के प्रदान करने के लिए ये 2 दिन के कार्यशाला में बहुत अच्छे गणमान्य लोग उपस्थित रहे हैं। मैं फिर से एक बार सबका स्वागत करती हूँ और सभी मंत्रीगण यहाँ पे उपस्थित रहे, तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। आने वाले 2 दिन में बहुत अच्छी तरह से काम राज्य महिला आयोग की तरफ से किया जाएगा। फिर से एक बार सभी राज्य से आए चेयरपर्सन, मेंबर सेक्रेटरी, हमारे चेयरपर्सन, महाराष्ट्र के चेयरपर्सन, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती और स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच मैम। और निश्चित ही इन सभी समस्याओं को समाधान मिलेगा। और अब मैं आग्रह करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र मिस अदिति तटकरे जी से कि वे अपने संबोधन के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैम महाराष्ट्र में महिलाओं की आशा का केंद्र बिंदु हैं। स्वागत है मैम। Respected dignitaries, first of all, I welcome you all on the land of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Present on the dais, Honorable Chief Minister Shri Devendra Fadnavis Sir, Honorable Speaker, Legislative Council Shri Ram Shinde Sir, Honorable Speaker, Legislative Assembly Shri Rahul Ji Narvekar Sir, Honorable Srimati Neelamtai Gore, Honorable Shri Baba Saheb Patil, my colleague, my State Minister, Honorable Srimati Meghnatai Bordikar, Honorable Shri Pankajji Bhoyar, Honorable Srimati Vijayatai Rahatkar, Honorable Chairperson of Mahila Ayog Maharashtra Rupalitai Sakandkar, present on this occasion, Honorable Chitratai Wagh, Vidyatai, Manishatai, Sushiben Shah, Jyotitai, Srimati Delena Ji, Dr. Archana Mujumdar, Mamta Kumari, and all the dignitaries and all the representatives who have been putting forth their positive foot on empowering womanhood. It gives me immense pleasure to share my thoughts on the important role of Women Commission in India. The Indian Constitution has made special provisions to safeguard the dignity and rights of women in our society. Following these constitutional directives, the Maharashtra State Commission for Women was established on 25th January 1993, inspired by the National Commission for Women. Its core purpose is to uplift the status of women, protect their rights, and ensure justice whenever they face any kind of discrimination or injustice. The Commission highlights and works towards enhancing women's status and respect in society, identifying and addressing injustice against women, recommending changes to laws that may be unjust to women, advising the state government on policies that protect women's interest. Being a statutory body, the Commission has the authority of civil court. It can call for documents, examine witnesses, order investigations, and even halt proceedings if required. Over the years, the Maharashtra State Commission has undertaken many noteworthy initiatives. Among them is the Mahila Ayog Apल्या Dari. Program has brought hearings to women across districts together to fight for their right. Campaigns have been launched to stop practices like child marriages and widow discrimination. To strengthen the safety, the Commission started a helpline 155209 and partnered with Meta for Mission E-Suraksha, spreading the awareness about the cyber crimes like financial fraud, sextortion, and deepfake exploitation. Additionally, through legal aid, Shakti One-Stop Centers and Bharosa Cell, women receive legal and emotional support. Training camps are organized to empower counselors and frontline workers. Friends, at the national level, several pioneering programs are equally inspiring. The Panchayat Se Sansad 2.0 initiative bridges local women leaders with national governance. The Digital Shakti initiative builds cyber safety awareness among the women. Haryana's Mahari Lado radio program spreads the message of valuing daughters
while Savera program trains visually impaired women to detect breast cancer early. We also targeted initiatives like Mission Utkarsh to fight anemia among adolescent girls. The Swavalambini program promoting women entrepreneurship in the Northeast, and Maharashtra's own Farad Sakhi, which empowers women through festive snacks businesses. On the legislative front, the Aparajita Bill of West Bengal has set an example by strengthening laws against sexual offenses with stricter punishments and faster trials. Across states, women commissions have shown best practices from Odisha's skill-based rehabilitation for survivors to Telangana's She Teams ensuring safety and Delhi's task force in public transport. But dear colleagues, more still needs to be done. Transparent appointments, social audits, field visits, awareness campaigns, and empathy training for officials must be part of every commission's framework. In conclusion, I would like to empathize Women's Commission are not just a statutory body, they are voices of resilience, protectors of rights, and torchbearers of empowerment. Under the able leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi sir, together let us strengthen these institutions so that every woman in India lives with dignity, equality, and safety. And so do we wish to do it under the able leadership of our Chief Minister, Honorable Devendra Fadnavis sir. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. थैंक यू सो मच मैम। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज राष्ट्रीय महिला आयोग सुख से सुरक्षा और सुरक्षा से सम्मान तक, पराक्रम से परिवर्तन और परिवर्तन से प्रगति तक महिलाओं के लिए कार्य कर रहा है। और ये सभी कार्य हो रहे हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर जी के नेतृत्व में। मैं आग्रह करूंगा श्रीमती विजया राहटकर जी को कि वे अपने संबोधन के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन करें। राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वतीनं आज जी संपूर्ण देशभरामधल्या सगळ्या कोण्याकोण्यातून आलेल्या सगळ्या ज्या आमच्या विमेन कमिशनच्या चेअरपर्सन्स आहे यांची कॉन्फरन्स होते आहे, या कॉन्फरन्समध्ये महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेले छत्रपती शिवरायांना मी मनपूर्वक नमन करते, ज्यांनी संविधानाची नीव ठेवली आणि ज्यांनी उत्तमपणे संविधान तयार केलं असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची ही भूमी आहे। मी त्यांना सुद्धा अभिवादन करते। आणि त्याचसोबत महाराष्ट्र हा नेहमीच महिलांना पुढे घेऊन जाणारा असं हे राज्य आहे, महिलांच्या करता नेहमी सक्षम त्यांना करणारा असं राज्य आहे। या महाराष्ट्र भूमीच्या सगळ्या सशक्त महिलांना मी खूप खूप अभिवादन करते आहे। आज इथं सगळ्या आमच्या वुमेन कमिशनच्या चेयरपर्सनचं पण मैं खूब खूब स्वागत आणि अभिनंदन करते। आज के हमारे इस प्रोग्राम में इस मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उन्हीं के साथ साथ इस सभागार में उपस्थित हमारे विधान परिषद के सभापति आदरणीय श्री राम शिंदे जी, उनके साथ इस मंच पर विराजमान हमारे दूसरे सभागार के हमारे सभापति आदरणीय श्री राहुल नार्वेकर जी, इस मंच पर उपस्थित हमारी उपसभापति आदरणीय नीलमताई गोरे जी, जिनका हमने इतना अच्छा वक्तृत्व सुना, ऐसी हमारी महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती आदिति तटकरे जी, उन्हीं के साथ साथ इस मंच पर उपस्थित हमारी उनकी राज्य मंत्री श्री मेघना बोर्डीकर जी, इस मंच पर उपस्थित आदरणीय मंत्री श्री पंकज भोयर जी, श्री बाबा साहेब पाटिल जी, और इस मंच पर उपस्थित हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की सभी मेंबर्स, और विशेष रूप से आज मैं उनका उल्लेख करना चाहती हूँ जो कि हमारी महाराष्ट्र विमेन कमीशन की चेयरपर्सन है श्रीमती रूपाली चाकणकर जी, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से राष्ट्रीय महिला आयोग को सहयोग किया और इतने अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए सफल बनाया। ऐसी मेरी बहन रूपाली जी, सभी सम्माननीय व्यासपीठ और उसी के साथ साथ मेरे सामने बैठे हुए हमारी महाराष्ट्र की विधानसभा विधान परिषद की हमारी सभी विधायकगण,
जो आज विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित है, उन्हीं के साथ साथ हमारे देश के कोने से आई हुई सभी कमीशन की चेयरपर्सन, मेंबर सेक्रेटरी, आज विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित राष्ट्रीय महिला आयोग की एडवाइजरी कमेटी, और उसी के साथ साथ आज और कल 2 दिन के जो पूर्ण समय तक सत्र चलने वाले हैं, उसके लिए यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी स्पीकर्स और सम्माननीय अतिथिगण, आप सभी का मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज ये बहुत खुशी की बात है कि देश का लगभग ऐसा कोई एक भी प्रदेश नहीं है कि जहाँ से इस कॉन्फ्रेंस के लिए, इस शक्ति संवाद के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ है। देवेंद्र जी, सभी जगह से हमारी चेयरपर्सन आई है, सभी मेंबर्स आई है, उसी के साथ साथ मेंबर सेक्रेटरी भी आए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मैं अपने महाराष्ट्र में जिस भूमि से मैं आती हूँ, अपनी मुंबई में, आप सभी का बहुत दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैसे देखा जाए तो राष्ट्र की अध्यक्षा हूँ तो पूरा देश ही हमारा है, पर जिस भूमि से हम आते हैं उस भूमि पर अगर हम अपने बहनों का स्वागत कर पाते हैं तो उससे और खुशी की बात कोई नहीं हो सकती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर इस स्वागत करने के लिए, आपके लिए जिस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें सहयोग दिया है, विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने और हमारी मंत्री आदिति ताई ने और रूपाली ताई ने, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मेरे लिए बहुत खुशी की और सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, जिनको देखते हुए हम चलते हैं, उनका जो सामाजिक जीवन है, जो सामाजिक जीवन हम किस तरीके से हम चला पाते हैं, किस तरीके से लोगों के उपयोगी हम आते हैं, जनता की सेवा करते हैं, ऐसे जिनको देखते हुए हम सभी लोग चलते हैं, आज वो इस मंच पर उपस्थित हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं कि सिर्फ बात नहीं करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में अमल करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, मैं जब देश के अनेक कोने पे जाती हूँ, प्रदेशों में जाती हूँ, और तब जब मैं कहती हूँ कि महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री, उनके सभी सहयोगी गण, पूरी सरकार, सभी हमारे विधायक गण जब कहते हैं, अपना नाम जब बताते हैं, जब मुख्यमंत्री जी अपना खुद का नाम देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस कहते हैं, तो उस माँ को वो जो सम्मान देते हैं, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं होती है। हमारी माँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहन, उनके लिए हम लगातार काम करते हैं, करते रहेंगे और सम्मान के साथ करते रहेंगे। ये जो संदेश आपने दिया है, ये संदेश पूरे देश भर में बहुत सराहनीय ऐसा ही है। आज मुझे आप सभी के लिए कुछ कहना है। हमने सभी ने तय किया, नेशनल विमेन कमीशन की चेयरपर्सन बनने के बाद देवेंद्र जी, हमने ये तय किया कि सभी स्टेट के विमेन कमीशन को हम साथ लेकर चलेंगे। आज भी महिलाओं के अनेक प्रश्न हैं, महिलाओं को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत भी होती है, पर उसी के साथ साथ महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए देश में बहुत बहुत पॉलिसीज़ भी बन रही है, बहुत अच्छे तरीके से महिलाएं आगे भी बढ़ रही है। इन सभी विषयों को देखते हुए अगर नेशनल वुमेन कमीशन के साथ सभी स्टेट वुमेन कमीशन मिलकर काम करते हैं तो हम एक तरीके से, एक दिशा में हम काम कर पाएंगे। कितनी बार हम काम करते हैं, अलग अलग विषयों में काम करते हैं, तो फिर उसका एकत्रित परिणाम नहीं दिखता है। हमें अगर एकत्रित परिणाम भी मिलना है, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देना है, तो हमें मिलकर काम करने की बहुत ज़रूरत मुझे लगी थी और हमने शुरू किया हमारी चेयरपर्सन्स के साथ, सभी स्टेट्स के साथ एक शक्ति संवाद। हमने पहला शक्ति संवाद उत्तर प्रदेश में अयोध्या में किया और अयोध्या में बहुत अच्छा उसका उपयोग हुआ। उसके बाद 4 महीने में हमारे ये ध्यान में आया कि हम मिलकर बहुत शानदार काम कर रहे हैं, एकत्रित मिलकर काम हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा शक्ति संवाद आज हमारी, आपकी सभी की अपनी मुंबई में ये हो रहा है। आज इस शक्ति संवाद में हम अनेक अनेक विषयों पर बात करेंगे। हम कमीशन के चेयरपर्सन होने के नाते, मेंबर होने के बातें, हमें अनेक अनेक विषयों पर काम पढ़ना होता है। हमारी जो कंप्लेंट एंड रिड्रेसल सिस्टम है, उसको हमें बहुत ताकतवर बनाना होता है ताकि हमारे पास जो भी महिलाएं आए उनके साथ हम न्याय कर पाए। उस विषय में हम मिलकर एकत्रित कैसे काम कर सकते हैं। जब मैं महाराष्ट्र में थी, जब वुमेन कमिशन की चेयरपर्सन थी, तब हमने महिला आयोग आपल्या दारी हा उपक्रम सुरू केला। ये जो उपक्रम था,
इसी उपक्रम को लेकर हम बाद में भी चलते रहे। आज राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार हम ये काम कर रहे हैं। पर रूपाली जी, मुझे बहुत खुशी लगती है, बहुत अच्छा लगता है कि जो उपक्रम को मैंने शुरू किया था आपने उसको बंद नहीं किया, आपने उसको कंटिन्यू चलाने का प्रयास किया। आज रूपाली ताई का भी जब महिला आयोग आपल्या दारी में देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि भले व्यक्ति बदल जाता है पर व्यवस्था नहीं बदलती है, आपने उसको कायम रखा। आज राष्ट्रीय महिला आयोग पूरे देश भर में जाते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार इस नाम की जन सुनवाई करता है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गत 3 महीने में हम अलग अलग प्रदेशों में गए, लगभग 13 प्रदेशों में हम जाकर आए 3 महीने में, और उसमें हमने 75 से भी ज़्यादा जन सुनवाई हम कर पाई है। पर ये इसका पूरा श्रेय मैं मेरे मेंबर्स को देती हूँ। मेरे मेंबर्स ने जो काम किया है वो इतना शानदार है कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रवास करती है और जन सुनवाई करती आती है। हमें जन सुनवाई के लिए मिलकर क्या तरीका हो सकता है, हमें एकत्रित सोचने की ज़रूरत है। मैं आज देख रही हूँ कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा जो प्रदेश है वो प्रदेश इसी जन सुनवाई को आगे बढ़ा रहा है। इसी के साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि हमें आज मिलकर ये भी सोचना है कि हमारे सामने जो प्रश्न है, महिलाओं के जो प्रश्न हैं, उस विषय पर भी हमें बात करने की बहुत ज़रूरत होती है। इसमें एक विचार के साथ चलना होता है, चाहे वो कंसेंट एज हो, चाहे वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, या उसी के साथ साथ पॉश अवेयरनेस हो। इन सभी विषयों पर हम मिलकर बात करते हैं। हम कितनी बार महिलाओं को सिर्फ देह के रूप में देखते हैं, जबकि लिंग विरहित अगर हम उनको देखते हैं तो उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आती है। इसीलिए इनर वुमन के लिए भी आज हम बात करेंगे, और इसी तरीके से केयर इकोनॉमी के ऊपर भी आज हम बात करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग समय के साथ चलने वाला आयोग है। हमने ये भी सोचा है कि हमने पूरे देश के कमीशन के लिए, देश की महिलाओं के लिए हम बहुत अच्छा काम साइबर क्राइम के खिलाफ चलने के लिए हम करेंगे, और इसके लिए हमने अनेक अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। मैं आज विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ उन कार्यक्रमों को जो कैंपस कॉलिंग है, जो हम युवाओं के लिए करते हैं। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में हम ये कार्यक्रम करते हैं, और उसी के साथ साथ मैं उसी भी प्रोग्राम का उल्लेख करना चाहती हूँ जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चल रहे हैं। आज पूरे देश भर में यशोदा AI, ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कार्यक्रम चल रहा है। इसका उपयोग करते हुए आप साइबर क्राइम से तो बच सकते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप में अपने जीवन में जो हमें काम करना है, ये काम हम AI के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है। देवेंद्र जी, मुझे आपको ये भी कहना है कि हम एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका नाम है शी द चेंज मेकर। हमारी जो बहनें हैं, जो सरपंच है, ब्लॉक ऑफिसर है, या ब्लॉक की प्रधान है, उसके साथ साथ जिला परिषद के मेंबर है, पार्षद है, उनके लिए शी द चेंज मेकर कार्यक्रम चलता है। और मैं बहुत खुशी के साथ आपको कहना चाहती हूँ कि हजारों की संख्या में हमने उन सभी बहनों को हमने प्रशिक्षित किया है। पंचायत से पार्लियामेंट तक एक कार्यक्रम चलता है। ये कार्यक्रम हमारे पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में हम करते हैं। सेंट्रल हॉल में हमारी जो 3 टायर सिस्टम की जनप्रतिनिधि है, पिछली बार हमने हमारी जनजातीय क्षेत्र की जनप्रतिनिधियों को बुलाया था, उनको हम उस सेंट्रल हॉल में लेके जाते हैं, और सेंट्रल हॉल में हमारी बहनें वहाँ पे बैठते हुए काम करती है, चर्चा करती है। लोकसभा के हमारे आदरणीय स्पीकर जी उस कार्यक्रम के लिए पूर्ण समय उपलब्ध होते हैं। पर उसके साथ साथ ये बहुत खुशी की बात है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस कार्यक्रम के लिए बहुत ध्यान दिया। उन सभी बहनों को उन्होंने अपने घर पे बुलाया, उन सभी महिलाओं के साथ बात करी, और आज भी महामहिम राष्ट्रपति जी की तरफ से ये ज़रूर देखा जाता है कि क्या हमारी वो जनप्रतिनिधि अच्छे तरीके से काम कर रही है ना। ऐसे अनेक अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस मंच पर हमारे दोनों स्पीकर यहाँ पे उपस्थित है। महिलाओं का सम्मान किया जाता है, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं होती है, तो प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पे उपस्थित होके हमारी बहनों को साथ शुभकामनाएं देने के लिए हम आपके साथ हैं, ये बताने के लिए हमारे दोनों भी स्पीकर सर यहाँ आज आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वैसे ही बात हमारी नीलम ताई की है, हमारी उपसभापति है, महिलाओं के प्रश्नों में बहुत अच्छे तरीके से देखती है, वो भी आज यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं आज आपको कह रही थी कि हम आज 2 विषयों के ऊपर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको आग्रह करना चाहूँगी कि हम जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस का जो कानून है, जो पॉश कानून है, इसमें इंटरनल कमेटी का और लोकल कमेटी का प्रावधान कहा गया है।
अभी लगभग हर जगह पे ये इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी बन गई है, पर प्रत्यक्ष रूप में इन्होंने और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इस कानून के बारे में अनेक अनेक गलतफहमियां लोगों के मन में हैं, हमें वो भी कम करने की ज़रूरत है। कानून हमेशा जेंडर न्यूट्रल होता है, वो कोई पुरुषों के खिलाफ नहीं होता है या महिलाओं के खिलाफ नहीं होता है, ये हमें बहुत बताने की ज़रूरत है। और इस कानून में अगर महिला भी गलती करती है तो उनको भी सज़ा का प्रावधान रखा गया है। तो ऐसी अनेक गलतफहमियां हैं जिसके लिए हमें बताने की ज़रूरत है, उसका जो वर्किंग किस तरीके से होता है वो भी बताने की ज़रूरत है। मुझे आपको आग्रह करना है, महाराष्ट्र में तुलना में बहुत अच्छे तरीके से इंटरनल कमेटी बन गई है, लोकल कमेटी भी है, पर इसके साथ साथ महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा उद्योग भी है। यहाँ पे ऐसे सभी क्षेत्र की और इंटरनल कमिटीज बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके भी अपने राज्यों में वो बनाने की ज़रूरत है। मैं आपको आग्रह करूँगी कि आपका जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अन्य अन्य डिपार्टमेंट है, इनको हम ज़रूर आग्रह करें कि वो अपने अपने क्षेत्र की इंटरनल कमिटीज ज़रूर बना के ले ले, हर साल में उनका रिपोर्ट भी मंगवाए। वही बात मैं लोकल कमेटी की भी करूँगी। लोकल कमेटी हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोकल कमेटी हमारे जिले में जो असंगठित क्षेत्र की काम करने वाली महिलाएं हैं, उन महिलाओं को मदद करने वाली ये कमेटी है। इस कमेटी का सक्षमीकरण करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इनएक्टिव नहीं होती है तो फिर वो महिलाओं की मदद नहीं कर पाती है। इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये तय किया है कि इस साल हम पूरे देश के 100% डिस्ट्रिक्ट में हम खुद जाएंगे और लोकल कमेटी की क्षमता हम पूरी अच्छे तरीके से उपयोग में लाएंगे। मुझे आज ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने अभी तक 125 जिले में हम गए हैं इस 3 महीने में, और हमने लोकल कमेटी का बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग किया है, उनको काम करने के लिए प्रेरित किया है, उनको हम मॉनिटर भी कर रहे हैं। मुझे आपको आग्रह करना है कि अगर एकत्रित रूप में महाराष्ट्र की सभी लोकल कमेटी का एक ट्रेनिंग यहाँ पे होता है तो राष्ट्रीय महिला आयोग यहाँ आते हुए वो ट्रेनिंग को पूरा करेगा, ताकि हमारी लोकल कमेटी बहुत अच्छे तरीके से काम भी करे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आपको और एक निवेदन करना है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो हमारी जो विवाह संस्था है, ये पूरे विश्व के लिए एक अनुकरणीय और बहुत उत्सुकता का विषय है। परिवार के साथ हम रहते हैं, परिवार में मिलकर चलते हैं। अगर इस विवाह में कभी कुछ अड़चन आती है तो पोस्ट मैरिटल कम्युनिकेशन के लिए हमारे यहाँ अनेक व्यवस्था है। पुलिस है, कमीशंस है, उसी के साथ साथ नालसा डालसा है और फैमिली कोर्ट्स भी है। पर प्री मैरिटल कम्युनिकेशन के लिए इसके पहले हमारे यहाँ व्यवस्था होती थी कि एकत्रित कुटुंब पद्धति है। धीरे धीरे अब कारणों की वजह से वो थोड़ी सी कम होने लगी है। हमें थोड़ा सा इस विषय पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह तय किया है कि हम हर जिले में प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर स्थापित करेंगे, जिसका नाम है तेरे मेरे सपने। ये दोनों के सपने हैं, दोनों ने मिलके चलना है, दोनों ने मिलके विचार करना है, दोनों ने अपने बुरे जीवन को आगे बढ़ाना है। पर कितनी बार हम ये भी देखते हैं कि हम बाकी अन्य सब विषयों पर विचार करते हैं कि शादी कैसी होनी है, भोजन के लिए क्या होना है, जगह कैसी होनी है, गेस्ट कौन आने वाले हैं। हम ये ज़रूर सोचें, पर इसके साथ साथ हम ये भी सोचें कि उन दोनों का जो जीवन है वो अच्छे तरीके से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वो दोनों मिलके कैसे आगे चल सकते हैं। इस विषय के लिए संवाद करने के लिए हमने ये तेरे मेरे सपने जो प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर है, इसकी स्थापना करी है। मुझे आज कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने देश के कलेक्टर्स, इसी के साथ साथ म्यूनिसिपल कमिश्नर, यूनिवर्सिटीज़ और कुछ NGOs, इनको हमने ये स्थापित करने के लिए कहा था। और आज देश में करीबन 11 स्टेट में हमारे 60 प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर शुरू हो गए हैं। इसमें से अच्छी संख्या हमारे अपने महाराष्ट्र की है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मुंबई में एक सेंटर शुरू हो गया है जो मेट्रो है, पर हमारा सोलापुर में सांगोला जैसा जो गांव है, जो कि बहुत छोटा है, पहले मुझे ही लगता था कि इतने छोटे गांव में इसकी क्या ज़रूरत है, पर अगर मैं आज कहती हूँ कि सबसे अच्छा अगर सेंटर कहीं चल रहा है तो हमारे सांगोला का सेंटर चल रहा है। यानी कि ये भी अधोरेखित होता है कि मेट्रोज में तो इसकी ज़रूरत है, पर छोटे गांवों में भी उसकी बहुत ज़रूरत है। मैं आपको निवेदन करूंगी कि महाराष्ट्र के हर जिले में
एक ग्रामीण जिले के लिए और एक शहरी जिले के लिए हर जगह पे तेरे मेरे सपने की स्थापना ज़रूर ज़रूर हो जाए, ताकि जो विवाह योग्य जो तरुण और तरुणी है वो यहाँ पे आते हुए बात कर सकेंगे, वो चीज़ों को समझ ले लेंगे और अपनी एक दूसरे के साथ चलने की समझ भी बढ़ाकर उसके बाद शादी के बंधन में वो बन जाएंगे। ये दो चीज़ें मुझे आपको ज़रूर ज़रूर आग्रह करनी थी। मुझे मेरी सभी चेयरपर्सन बहनों को कहना है कि हम सभी लोग महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए, उनके सुरक्षा और सम्मान के लिए हम सभी एकत्रित आते हैं, मिलके सोचते हैं, मिलके विचार करते हैं। और जैसे हमने ये शुरू किया है, मैं देख रही हूँ कि मेरे सभी कमीशंस आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अगर कोई एक का उल्लेख करती हूँ तो वो अच्छा नहीं होगा। सबके लिए मैं बोल सकती हूँ कि आपने कितना अच्छा काम आप कर रहे हैं, बस समय के अभाव से मैं उल्लेख नहीं कर पाऊँगी, पर मैं आप सभी को रोज़ ऑब्जर्व करती रहती हूँ। हम एकत्रित बात करते हैं, एकत्रित अनेक चीज़ों पर भी हम सोचते रहते हैं। आप जिस तरीके से काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आज हमने पॉश में सब लोगों ने मिलकर एकत्रित काम किया। आज पॉश के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई देने लगी है। कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम हमारी बहुत अच्छी चल रही है। पर और थोड़ा सा एक विषय ज़रूर है कि जो बहुत ज़रूरतमंद महिलाएं होती है, जिनको बहुत भरण पोषण की ज़रूरत होती है, कितनी बार उनको हम मदद नहीं कर पाते हैं। हमें ऐसे विषयों में भी कुछ जाने की ज़रूरत है, कुछ सोचने की ज़रूरत है। ऐसे अनेक विषय हैं। आज के और कल के 2 दिनों में हम इस विषय पे सोचेंगे, विचार मंथन करेंगे और आगे चल के बहुत ही अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आज आप सब लोग यहाँ पर आए, मिलकर हमने कुछ सोचा है, इसके लिए मैं फिर से आपका सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे सामने आज इस उद्घाटन सत्र के लिए यहाँ के अनेक अनेक मान्यवर आए हैं। मैं उन सभी मान्यवरों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र ने जो हम सभी को जो सम्मान दिया है, जो आपने हमें प्यार से यहाँ पे 2 दिन बुलाया है, इसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत सिर्फ धन्यवाद नहीं स्थापित करते हैं, तो हृदय की गहराई से महाराष्ट्र के लिए सभी चेयरपर्सन अपने हृदय में स्थान रखेगी। मैं हमारी मंत्री जी का, हमारी अध्यक्षा रूपाली ताई का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी यहाँ पर आए, इसके लिए आपका भी धन्यवाद करते हुए मेरे वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आभार माननीय। और जैसे कि बहुत सारी समस्याओं में एक समस्या जिस पर मैम ने जोर दिया वो थी पौष की। आज जब भारत चांद तक पहुंच गया है तो महिलाओं को अब भी घर से दफ्तर तक पहुंचने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसी श्रृंखला में इसी बात को समझते हुए आयोग एक बुकलेट का लॉन्च करने वाला है जो पौष पर आधारित है। और मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी से तथा अन्य सभी गणमान्यों से कि राष्ट्रीय महिला आयोग की इस बुकलेट का विमोचन करें। और यह दायित्व राष्ट्रीय महिला आयोग का रहेगा कि इस बुकलेट को लाखों करोड़ों महिलाओं तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर इस पुस्तिका का विमोचन महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब तथा अन्य गणमान्यों के शुभ कार्यक्रमों से ये भूमि महाराष्ट्र की जो भूमि है, जिजाऊ माँ साहेब की भूमि है, अहिल्याबाई होळकर की भूमि है, महारानी ताराबाई की भूमि है, सावित्रीबाई फुले जी की भूमि है। और इस भूमि में ये हर कोई महिला सुरक्षित महसूस करे, हर कोई महिला को शस्त्र और शास्त्र दोनों का आधार मिले, यही हमारा सपना है। आज आप सब यहाँ पर आए हुए हमारे अतिथि हैं, तो महाराष्ट्र के बारे में जब मेहमान हमारे घर आते हैं तो हमारी घर की जो सबसे खूबसूरत चीज़ होती है उसके बारे में हम ज़रूर अभिमान के साथ, फक्र के साथ कुछ कहना चाहते हैं। तो वैसी भी भावना मेरे मन में भी अभी है। तो फिर एक बार आप सभी का स्वागत करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। जैसा कि अभी रूपाली ताई ने कहा कि एक त्रिमूर्ति है हमारे पास, ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो स्त्री शक्ति संगठन के लिए जुटे हुए हैं। यहाँ पर उल्लेख हुआ लाड़की बहन योजना का,
तो लाडली बहन एक ऐसी योजना है कि मासिक राशि हर महिला को जिसको ज़रूरत है वहाँ पर सरकार की ओर से दी जाती है। पर जैसी बहन लाडली है वैसी यहाँ पे कन्या भी लाडली है और यहाँ की बहू भी लाडली है। हाल ही में एक योजना का निर्माण किया है, सरकार की ओर से किया गया है, आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में किया गया है, जो है यहाँ पर जो बहू है वो भी सुरक्षित हो। तो जितना आप अपने मैके में सुरक्षित महसूस करते हैं उतना अपने ससुराल में भी आप सुरक्षित महसूस करें। केजी से लेकर पीजी तक हर शिक्षा का अधिकार स्त्री को होना चाहिए। मैं बचत गट के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि बचत गट एक बहुत ही स्त्री शक्ति के संगठन की एक मिसाल है और आज आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में नए 7 लाख बचत गटों का निर्माण किया गया है और पहले से जो मौजूद है वो तो है ही। तो लाखों की गिनती से एक ही और स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर कई सारी बातें कहने जैसी है लेकिन एक स्टैटिस्टिक जरूर कहना चाहूँगी कि लखपति योजना है, लखपति दीदी योजना हमारे पास है और उस योजना में 25 लाख आज तक लाभार्थी हुए हैं, 25 लाख महिलाएं लखपति हुई है और ये देवेंद्र जी का सपना है कि 1 करोड़ महिला तक इस संख्या को हम पहुँचाएं, ये उनका संकल्प है। तो जो ऐसी जिनकी सोच ऐसी है कि 50% अगर हमारी पार्टनरशिप है विकास में महिला के तौर पर, तो महिला जिसका 50% पार्टनरशिप है उसको मौका 100% मिलना चाहिए। ये जिनकी सोच है, ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस से मैं विनती करना चाहूँगी, सर आप इस सभा को संबोधित करें। हिंदवी स्वराज के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूँ। भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्हें भी वंदना अर्पित करता हूँ, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज हमें दिए। ऐसी आई जिजाऊ माँ साहेब आज तिथि के अनुसार जिनकी पुण्यतिथि है, ऐसी लोकमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर और महिलाओं के शिक्षा की पुरोधा क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इन सभी शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति को मैं वंदन करता हूँ। आज इस शक्ति संवाद में मंच पर उपस्थित हमारे विधान परिषद के सभापति श्री राम शिंदे जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी, उपाध्यक्ष श्रीमती नीलम तय गोरे, जरा उधर थोड़ा आवाज कम करेंगे, थोड़ा बोलिए, बंद करिए उसको। हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा और जिनका कल ही जन्मदिन हुआ है, ऐसी हमारी विजयाते राहटकर, हमारी मंत्रिमंडल में हमारी सहयोगी हमारी छोटी बहन अदिति तय तटकरे, हमारे साथी मंत्री श्री बाबा साहेब पाटिल, हमारी राज्य मंत्री मेघनाते बोर्डीकर, श्री पंकज भोयर, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजित किया। ऐसी राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रूपाली तय चाकणकर, हमारे महिला आयोग की सदस्या श्रीमती डेलिना खोंगडुप, श्रीमती ममता कुमारी, डॉक्टर अर्चना मजूमदार, हमारी महाराष्ट्र की विधायक मनीषा तय चौधरी, विद्या तय ठाकुर, चित्रा तय वाघ, यहाँ पर उपस्थित जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती राधिका चक्रवर्ती, हमारे भिन्न भिन्न राज्यों से यहाँ पर पधारी हुई महिला आयोग की अध्यक्षा, सदस्य सचिव, सदस्य, सभी
पधारी हुई हमारी बहनें और उपस्थित, मैं ऐसा कहूँगा माइनॉरिटी में उपस्थित हमारे सभी भाई, ऐसा बहुत कम होता है कि भाई माइनॉरिटी में होते हैं और बहनें मेजॉरिटी में होती है, लेकिन समाज का यही चित्र अपेक्षित है कि जहाँ हर जगह हमारी बहनों का सहभाग, उनकी सहभागिता हमें बड़े पैमाने पर दिखे। सबसे पहले आप सभी लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर महाराष्ट्र में आए हैं, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार की ओर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे बहुत खुशी है कि शक्ति संवाद एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, एक बहुत ही कारगर संवाद मुंबई में हो रहा है और राज्य के और देश के महिला आयोग ने मिलकर इस संवाद के लिए मुंबई को चुना, इसलिए उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि महिला आयोग के माध्यम से पूरे देश में और हर राज्य में महिलाओं के प्रति जो भेदभाव होता है, उस भेदभाव को समाप्त करते हुए एक समता और समानता हम लोग किस प्रकार से लाए, इसकी ओर ध्यान दिया जाता है। और इसके चलते महिलाओं की सुरक्षा हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने का प्रयास और इसमें जो सरकारी तंत्र है उस तंत्र को सजग रखने का प्रयास ये महिला आयोग के माध्यम से होता है। और मुझे बहुत खुशी है, चाहे वो राष्ट्रीय महिला आयोग हो, चाहे हमारा महाराष्ट्र का महिला आयोग हो, ये लगातार अपने भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे सरकारी तंत्र को जागृत रखता है। और कहीं तंत्र अगर पटरी छोड़ता है तो उसको पटरी पर लाने का काम भी ये लोग करते हैं, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये जेंडर इक्वालिटी के बहुत बड़े पक्षधर हैं और कोई भी वैश्विक नेता इस बात को समझता है कि अगर हम सामाजिक आर्थिक परिवर्तन चाहते हैं तो उसका रास्ता ये लैंगिक समानता से, जेंडर इक्वालिटी से ही गुजरता है। दुनिया के इतिहास में हमने ये देखा कि जहां जहां विकास की ओर जिन जिन राष्ट्रों ने अपना प्रवास किया है, उस प्रवास में लैंगिक समानता उस प्रवास का एक मील का पत्थर साबित हुआ है। आज हम विकसित भारत की ओर जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना हमारे सामने रखी है। और ये जो विकसित भारत है, ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारी जनसंख्या का 50% हिस्सा इस विकास की यात्रा का भागीदार होगा। और इसी के चलते हम देख सकते हैं कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री महोदय की सारी योजनाएं ये स्त्री लक्षित योजनाएं हैं, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने वाली योजनाएं हैं। और आज एक बदलाव भी हम लोग देख रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर ये जो शुरुआत हुई वो लखपति दीदी की ओर जा रही है। ये भी हमारे लिए एक बहुत सुखद इस प्रकार का परिवर्तन है। हमने अक्सर ये देखा कि दुनिया में चाहे
पहले यूरोप हो, फिर अमेरिका हो, उसके बाद जापान, कोरिया, चाइना, ये सारी अर्थव्यवस्थाएं विकसित अर्थव्यवस्थाएं बनी। किंतु अगर हम इनके विकास की प्रक्रिया को देखें तो यहां पर भी जब तक उन्होंने जेंडर इक्वालिटी का महत्व नहीं समझा तब तक इनको विकसित सामाजिक व्यवस्था के रूप में नहीं देखा गया। हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन जैसे, जिसको बड़ा आधुनिक देश समझा जाता है, उसको भी महिलाओं को मतदान देने का अधिकार सौंपने के लिए एक बड़े संघर्ष से गुजरना पड़ा और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में यह अधिकार वो दे पाए। मैं तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया जिस संविधान ने सभी भेदों को समाप्त कर दिया है। न जाति भेद है, न लिंग भेद है। हमारे संविधान ने हर व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में समान अधिकार सौंपा है, सभी को समान अवसर दिया है और इसी संविधान के चलते हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर इस यात्रा को देखेंगे तो जब जब इन सभी राष्ट्रों को ये समझ में आया और उन्होंने अपनी जनसंख्या का 50% हिस्सा जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को मानव संसाधन के रूप में विकसित किया और देश की अर्थव्यवस्था के दूसरे चक्र के माध्यम से जब उनका इस्तेमाल किया तो बड़ी तेजी के साथ उनकी अर्थव्यवस्थाओं ने एक प्रकार से जंप ली और वो सारी अर्थव्यवस्थाएं विकसित बनी। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत भी अब उस ओर अग्रसर हो रहा है। देश की सरकारों को यह ध्यान में आया है कि महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के रोजगार, ये केवल एक अधिकारिता की बात नहीं है। अधिकारिता तो उसमें मिलती ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का उपकरण है और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन अगर तेजी के साथ करना है तो इसमें हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि महाराष्ट्र की हमारी सरकार ने हमारी जो बच्चियां हैं उन बच्चियों को KG to PG पूर्ण रूप से जो शिक्षा है उसको मुफ्त में शिक्षा देने का निर्णय किया। और आज चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, MBA हो, BBA हो, ऐसे सभी कोर्सेस में हमारी बच्चियां आज पढ़ पा रही है। उनकी शिक्षा का जो आर्थिक भार है वो सरकार संभाल रही है और इसका परिणाम यह है कि हम लोग मुख्यमंत्री के तौर पर आजकल किसी भी कॉन्वोकेशन में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो अगर यूनिवर्सिटी में 100 गोल्ड मेडल होते हैं तो उनमें से 90 गोल्ड मेडल बच्चियों को मिलते हैं और 10 गोल्ड मेडल केवल बच्चों को मिलते हैं। तो इसका सीधा मतलब यह है कि अवसर दिया तो शक्ति है, और शक्ति है और उसको अगर दबा कर रखा तो उसके परिणाम ये समाज और देश की व्यवस्था पर होते हैं। इसलिए अवसर देना ये बहुत जरूरी है। आज जिसकी यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ, महाराष्ट्र में हमने लाडली बहना जैसी योजना चालू की। हमारी अदिति तटकरे, इन्होंने मंत्री के रूप में बहुत अच्छे तरीके से इस योजना को संचालित किया। आज करीब 2.5 करोड़ हमारी बहनों को हम हर महीने 1500 रुपये ये उनके अकाउंट में देते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब धीरे धीरे ये केवल 1500 रुपये तक सीमित नहीं हुआ, तो महिलाओं में एक क्षमता होती है कि हमारी कुछ महिलाओं ने मिलकर इसके माध्यम से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक तैयार की। ऐसी सारी महिलाओं को इकट्ठा करते हुए और उन पैसों की बचत करते हुए महिलाओं को उसमें से कर्जा देकर और उनको अपने पांव पर कैसे खड़ी कर पाए, इसका एक नया मॉडल तैयार हुआ।
अब उस मॉडल को हम लोग हर जिले में रेप्लिकेट करने का विचार कर रहे हैं, प्रयास चालू हो गया है, कुछ जगह उसकी शुरुआत भी हो गई है। और अक्सर हमने ये देखा है, और हमारी अदिति ताई इस बात की गवाह भी है, कि हम जितनी महिला लक्षित योजनाएं करते हैं तो साधारणतः जो हमारी अलग अलग प्रकार की सरकार की योजनाएं होती है जिसमें हम कर्जा देते हैं, तो भाइयों को जो कर्जा देते हैं उसमें वापस आने का परसेंटेज 50% है, और महिलाओं को जो कर्जा देते हैं उसमें वापस आने का परसेंटेज 100% है। 100%। एक भी पैसा कभी ऐसा होता नहीं है कि महिलाओं ने वापस नहीं किया। और आज ये भी हमारे लिए गर्व की बात है, अभी अभी जैसे बताया गया कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी का कार्यक्रम शुरू किया, तो हमने पहले साल 25 लाख लखपति दीदी तैयार कर ली है। इस साल और 25 लाख लखपति दीदी हमारी तैयार हो रही है, और 1 करोड़ बहनों को महाराष्ट्र में हम लोग लखपति दीदी बनाएंगे। हम लोग बनाएंगे नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्रेडिट लेंगे। लखपति दीदी तो अपने मेहनत से बनेगी, हमारे कार्यक्रम उसमें केवल केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के होंगे, लेकिन उनके बनने के बाद हम ये क्रेडिट लेंगे कि हमने हमारी 1 करोड़ बहनों को यहाँ पर लखपति दीदी बनाया है। पर आज मैं ये देखता हूँ कि ये जो पैशन हमारी महिलाओं में हमको देखने को मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब ऐसा कोई उद्योग नहीं है कि जहाँ पर महिलाएं अग्रसर नहीं हो रही है। अभी केवल ये बचत गटों तक ये सीमित नहीं है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई, महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर हमारी जो स्किल यूनिवर्सिटी है उसने महाराष्ट्र में 10,000 महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेनिंग दिया है, और आज उसका उपयोग करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में वो काम करने की कोशिश कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हमने महाराष्ट्र के हर जिले में एक मॉल तैयार करना शुरू किया है। ये मॉल ये केवल हमारी महिलाओं के जो बचत गट है उनके लिए हमने डेडिकेट किया है। हमारी महिलाओं के बचत गटों की जो वस्तुएं बनती है वो वस्तुओं की बिक्री के लिए एक मार्केट प्लेस के रूप में हम उसको इस्तेमाल करेंगे। पिछले कुछ सालों में उसका ब्रांडिंग हो चुका है, उसका एक ई मार्केट प्लेस तैयार हो चुका है, और मुझे लगता है कि एक आंदोलन के रूप में आज ये सारा कार्य बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। और मेरा विश्वास है कि अपने पांव पर हमारी जो महिलाएं वो खड़ी होने में एक गति अब महाराष्ट्र में तैयार हो गई है। इसके साथ साथ निश्चित रूप से महिलाओं की सुरक्षा ये भी एक बहुत अहम बात है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आज बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न हमारे सामने। समाज जितना विकसित हो रहा है, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि उतना विकृत भी हो रहा है। जिस प्रकार से आज महिला अत्याचार की बहुत ही जघन्य इस प्रकार की घटनाएं, जिसमें कई घटनाओं में तो मानवता का स्वरूप ही समाप्त हो जाता है। पशुओं से भी खराब बर्ताव जब हम कुछ घटनाओं में महिलाओं के प्रति देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं समाज के अंदर ये विकृतियां किस प्रकार से तैयार हुई है, और इन विकृतियों को अगर हमें दूर करना है तो हमें हमारे जो संस्कार है उन संस्कारों को फिर एक बार जागरूक करना होगा। हमारे संस्कारों को हमारी नई पीढ़ी में रोपित करना होगा, और विशेष रूप से महिलाओं के प्रति सम्मान ये बचपन से हमको सिखाना पड़ेगा। और ये अगर सिखाना है तो केवल किताबों में सिखाकर नहीं चलेगा। अपने घरों में हम अपनी बहनों के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहू के साथ, अपनी बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसको देख देख कर घर के बच्चे बड़े होते हैं। और अगर हमारा व्यवहार अपने घर में भेदभावपूर्ण है तो उसी व्यवहार को लेकर जब वो बच्चा खड़ा होता है, बड़ा होता है, तो उसके मन में कोई सम्मान नहीं होता। उसको तो ऐसा लगता है कि एक उपकरण के रूप में हम महिलाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने घरों में भी उन वैल्यूज़ को, उन मूल्यों को हम लोग रोपित करने का प्रयास करें, जिससे बचपन से बच्चों के मन में लिंग समानता ये हम लोग तैयार कर पाए, और एक सम्मान की भावना भी हम लोग तैयार कर पाए। आज जहाँ एक और
इस प्रकार की बहुत घटनाएं बढ़ रही है, इसकी चिंता है। लेकिन चिंता के साथ साथ एक चीज का मुझे संतोष भी है कि अब महिलाएं चुप नहीं बैठ रही है, वो आगे आ रही है। अब महिलाएं पुलिस केस कर रही है, अब समाज उनको दबा नहीं पा रहा है, अब घर वाले ये बोल नहीं पा रहे कि बेटा आप कंप्लेंट मत करो नहीं तो खानदान का नाम खराब हो जाएगा। अब ये मानसिकता बदल रही है। इसलिए जब मैं बढ़ता हुआ नंबर देखता हूं तो चिंता तो होती है, लेकिन मुझे पता है कि अगर इस प्रकार के जख्मों को हम दबा कर रखेंगे तो धीरे धीरे वो जख्में इस हद तक पहुंचेगी कि हमको उस अवयव को काट देना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि इसको बाहर निकालिए, इसको समाज के सामने लाइए, इसके ऊपर चर्चा कीजिए और इसके ऊपर बहुत ही कारगर इस प्रकार की उपाय योजना कीजिए। क्योंकि आज देखिए शायद ये पहले भी होता होगा, लेकिन आज वो सामने आ रहा है जब हम लोग देखते हैं कि महिलाओं के अत्याचार में 99% अत्याचार ये या तो उनके रिश्तेदारों के माध्यम से या फिर उनके करीबी या पहचान के लोगों के माध्यम से होते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि समाज की इन विकृतियों को आज हम लोग आगे ला पा रहे हैं। शायद इससे पहले भी ये विकृतियां रही होगी, थोड़ी कम रही होगी, थोड़ी ज्यादा रही होगी, लेकिन इसको दबाने का प्रयास हुआ है। अब ये प्रयास समाप्त हो रहा है और अब आवश्यकता इस बात की है कि अब इसको केवल रजिस्टर करने तक नहीं, तो हम इसको तेजी के साथ हम लोग लॉजिकल एंड पर ले जाए। और मुझे बहुत इस बात का संतोष है कि जो नए कानून भारत सरकार ने तैयार किए हैं, उन नए कानूनों ने अब इस बात का प्रावधान किया है। इससे पहले राज्य अलग अलग प्रकार से नियम करते थे कि हम लोग जल्दी प्रोसिक्यूट कर पाए, जल्दी चार्जशीट कर पाए, लेकिन अब उसको कानून में ही परिवर्तित करने का काम ये केंद्र की सरकार ने किया है। और तीनों नए कानून एक प्रकार से अब इस प्रकार के जो मामले, इन मामलों को लॉजिकल एंड पर ले जाना और कन्विक्शन तक उनको पहुंचाना, इसके लिए बड़ी तेजी से काम करेंगे। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र में अब हम लोग 90% से भी ज्यादा केसेस में समय से पहले चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको चलाकर इनमें से ज्यादा केसेस में जितनी जल्दी हम लोग अपराधियों को सजा दे पाए वो सजा देने का प्रयास हमारा चल रहा है। और इसमें तो कई जघन्य अपराधों में कुछ दिनों में या कुछ महीनों में अब एक प्रकार से शिक्षा हुई है, दंड हुआ है या बहुत ही पीनल इस प्रकार के एक्शन हुए है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की परिस्थिति है। आज एक और हमारे सामने प्रश्न निर्माण हुआ है, जिस प्रकार से साइबर स्पेस में आज अलग अलग प्रकार के लैंगिक अपराध बढ़े हुए हैं और इसमें महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। कई बार अलग अलग प्रकार की मॉर्फिंग के माध्यम से उनको धमकियां दी जाती है और फिर समाज के डर से महिलाएं कई बार इसमें ब्लैकमेल होती है। कई बार हमारी लड़कियां एक प्रकार से आत्महत्या करते हुए भी हमको दिखाई पड़ती है। इनके ऊपर भी बहुत कारगरता के साथ और बहुत ही फर्मली हम लोगों को आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें ये जैसे एक प्रकार से हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा रही है, वैसे ही ये चीजें हमारे नए प्रश्न भी खड़ी कर रही है। आज किसी का भी चेहरा, किसी का भी आवाज हम लोग मॉर्फ कर सकते हैं, उसको हम लोग वीडियो में परिवर्तित कर सकते हैं, किसी को भी प्रताड़ित कर सकते हैं। ऐसे समय समाज को फर्मली खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि एक बात आप ध्यान में रखिए कि डिजिटल फ्रॉड ये हमेशा डिजिटल फुटप्रिंट तैयार करता है। इसलिए इस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो उसके लिए हम लोगों को बस कुछ समय का अवधि चाहिए। उस अवधि में हम लोग उसका डिजिटल फुटप्रिंट ये निकाल सकते हैं और तुरंत ये कैसा गलत है, ये कैसा फ्रॉड है, इसको लोगों के सामने लाकर और उसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो बीच का समय होता है, इस समय में महिलाओं के साथ कोई ना कोई खड़ा होना चाहिए, उनको धाड़स देने वाला होना चाहिए, तभी इस प्रकार के ये जो फ्रॉड, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, इनमें से हम महिलाओं को बचा पाएंगे। और मेरा विश्वास है कि इसके लिए भी हमारे महिला आयोग ने बहुत पहल की है। अलग अलग प्रकार से इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आज स्वास्थ्य सेवा में भी मुझे ऐसा लगता है कि राज्यों ने और केंद्र सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग प्रकार के इंटरवेंशंस किए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज हमारे समाज में जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों का कारण बहुत बड़े पैमाने पर यह है कि हमारी
माताओं को पोषण नहीं मिलता। अगर माताओं को सही पोषण मिले तो माताओं के साथ साथ हमारे बच्चे भी जो पैदा होते हैं वो रोग रहित, इस प्रकार के बच्चे जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसे बच्चे ये पैदा होते हैं। इसलिए पोषण जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्था को कारगर करना, हमारी जो माताएं हैं या जो माता बनने वाली है, ऐसी जो हमारी बहनें हैं, उनको उचित रूप से स्वास्थ्य की सेवा पहुंचाना, ये सारी चीजें मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत प्रायोरिटी है और राज्य की सरकारें अब इसको प्रायोरिटी से कर रही है। केंद्र ने इसके पीछे बहुत योजनाएं तैयार की है, लेकिन आज भी हमारे आदिवासी इलाकों में हम लोगों को वहां व्यवस्थाएं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ परंपराओं के कारण, कुछ रूढ़ियों के कारण इन व्यवस्थाओं का इस्तेमाल कम होता है। तो उनको हम कैसे ज्यादा से ज्यादा उन तक पहुंचा पाए, उनको इसका महत्व बता पाए और वहां पर भी हमारे जो बच्चे पैदा हो वो किस प्रकार से स्वस्थ बच्चे पैदा हो, इस प्रकार का, और बच्चे पैदा होने के बाद माओं का भी स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, इसके ऊपर भी हम लोगों को बहुत काम करने की आवश्यकता है। मैं आज इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सारे जो सेक्टर्स है, इसमें बहुत फोकस के साथ हम लोग भी काम कर रहे हैं और इसमें जिस प्रकार से हमारे विमेंस कमीशन का एक हमको गाइडलाइन मिलती है, इसमें जिस प्रकार से वो लोग लगातार एक इंटरवेंशन करते हैं, ये मैं बहुत स्वागत योग्य इस प्रकार का इंटरवेंशन मानता हूं। आज विजयाताई ने हमसे कुछ अपेक्षाएं भी व्यक्त की है। विशेष रूप से आप जो हमारी सारी कमिटीज का एक सम्मेलन महाराष्ट्र में लेना चाहते हैं, तो हम आपका स्वागत करते हैं। हमारी रूपाली ताई उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। आप जरूर इस प्रकार का एक कार्यक्रम महाराष्ट्र में लीजिए और हम सब लोग उसमें सहभागिता देंगे, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि जितना नीचे तक इस इंस्टीट्यूशन को हम लोग मजबूत करेंगे, तभी हम लोग ग्राउंड पर इसके रिजल्ट्स ला पाएंगे, नहीं तो ये रिजल्ट लाना बड़ा कठिन होगा। तो निश्चित रूप से इस बारे में हम लोग काम करेंगे। और दूसरा, आपने प्री मैरिज काउंसलिंग के बारे में एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम लोग मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की दुनिया में जी रहे हैं, उस दुनिया में अब बच्चे और बच्चियां जो शादी करना चाहते हैं, ये लोग भी असर्टिव है। अब वो ज़माना चला गया कि शादी से पहले मिलते ही नहीं थे, अब तो मुलाकात होती है, बातचीत होती है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें कुछ पहलुओं को अगर वो समझे, इसमें कुछ काउंसलिंग हो। आज हम लोग देखते कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स तभी हम लोग उनमें से हमारी महिलाओं को बाहर निकाल पाएंगे या पुरुषों को भी बाहर निकाल पाएंगे, जब प्री मैरिटल इस प्रकार की कुछ जांच होए या उस प्रकार से चीज़ों को हम बता पाए। आज सिकल सेल जैसी, थैलीसेमिया जैसी बीमारियां, ये केवल प्री मैरिटल काउंसलिंग से हम लोग समाप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है और मेरा विश्वास है कि हमारी जो महिला बाल विकास विभाग की मंत्री है अदिति ताई, ये निश्चित रूप से इसके ऊपर गौर करेगी और इसकी एक हम लोग आपसे गाइडलाइन लेकर इसको महाराष्ट्र में हम लोग हर जिले में और धीरे धीरे उससे भी नीचे तक हम लोग कैसे ले जाए, इसका विचार हम लोग जरूर करेंगे। और मुझे इस बात का भी उल्लेख करना, हमारे नीलम ताई भी यहाँ पर है। हमारे नीलम ताई ये महिलाओं के मुद्दों की चैंपियन है और ऐसे बातों को महिलाओं तक ले जाना ये हमेशा उन्होंने किया है, तो ये भी हमको इसमें निश्चित रूप से मदद करेगी। तो मैं आज के इस मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने शक्ति संवाद के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस फोरम पर सारी चर्चाएं ली है और इन चर्चाओं के माध्यम से जो आप एक मंथन करेंगे, जो चिंतन करेंगे, उसको भी हम लोग समझेंगे और उस चिंतन को और मंथन को आप हमारे पास लाएंगे तो उसको पॉलिसीज में हम कैसे परिवर्तित करें, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो हमारे सभापति और अध्यक्ष दोनों बैठे हुए हैं, ये ऊपर से हमको गाइडलाइन देकर वो करने के लिए मजबूर करेंगे। इसलिए आपने हमको चारों तरफ से बांध कर रख दिया है कि यहाँ ऐसे ऐसे सारे लोग बुला कर रखे हैं कि हम लोग जो कहेंगे वो हमको करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि निश्चित रूप से आपका ये जो संवाद है, इस संवाद को केवल संवाद तक नहीं तो एक्शन तक ले जाने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। आपने इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।
मी सन्मान्य राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या अनुमतीने आज शासनाच्या वतीने महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने आणि महिला आयोगाच्या वतीने आदरणीय विजयाताई रहाटकर ताईंचा विशेष या ठिकाणी सन्मान आदरणीय फडणवीस साहेब, आदरणीय राम शिंदे साहेब, आदरणीय राहुल नार्वेकर साहेब, नीलमताई, रुपालीताई, मेघनाताई, त्याचबरोबर आमच्या समोर बसलेला सर्व सहकारी चित्राताई, सुशीबेन, ज्योतिताई, मनीषाताई, विद्याताई यांनाही या ठिकाणी आमंत्रित करते. आपल्या सर्वांसाठीच ही एक अभिमानाची बाब आहे की आपल्या या भूमीतल्या एका भगिनीने महाराष्ट्राचं राज्य आयोगाचं प्रतिनिधित्व केलं आणि आज आपल्या सर्वांचं प्रतिनिधित्व ते राज्य महिला आयोगमध्ये करत आहेत. मी सन्मान्य मुख्यमंत्री महोदयांना या ठिकाणी विनंती करते की आपल्या हातून आपण विजयाताईंना या ठिकाणी सन्मानित करावं.